ठीक। आप लोगों को कोई मोटे मोटे मार्केटिंग के, सॉरी, मार्केट एंट्री, ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, A&M, या सेशन विल बी, डोंट वरी, द सेशन विल बी अपलोडेड। मैं आप लोगों को फ्रेमवर्क्स नहीं सिखाने वाला। आई एम नॉट हियर टू टीच यू फ्रेमवर्क्स दैट यू कैन फाइंड एनीवेयर। what I am going, what I want to inculcate in you guys is what was inculcated to me by my mentors, where I don't need any framework now to solve cases in general. I want to make sure that just stick with me for 30 minutes and you'll understand the basic science behind how cases are in general solved. And my market growth, merger and acquisition ki nahi lunga because they don't make sense for you right now. You will do this in your summers. But in general, case solving is not about कि framework पता होना चाहिए. Case solving is about intuition. It is about intuition, that's it. How many of you have heard about MISI? Mutually exclusive, collectively exhaustive. All of us have heard about it, right? We know what MISI is. सब कहते हैं MISI करो, MISI करो. What MISI actually is, if for example, you have a messy closet, आपके घर का जो wardrobe है, it's messy. If I ask you to find a shirt, you'll find it very difficult. But let's say if the entire closet is arranged in buckets, the top one half is for shirts, next is for pants, next is for shorts, next is for gym wear, etc., etc. Now, if I ask you to find a shirt, you exactly know where to find. You exactly know that मुझे top half में left side देखना है, वहां पे मैं shirts रखता हूँ. That is the concept of MISI. Buckets में बांटना. Imagine a messy closet. उसको buckets में बांटना है. That, for example, if I have a bucket for shirts and a bucket for red clothes, एक और एग्जांपल दे रहा हूं आपको, दैट आपकी बकेट कैसे बांटी जाती है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन सॉल्विंग केसेस. फॉर एग्जांपल, कोई आपको बोले कि आपको शर्ट्स बांटनी है, राइट? बट आप क्या कर रहे हो? आपने एक क्लोजेट बनाया शर्ट्स का, दूसरा बना दिया रेड क्लोथ्स का. आपने दो खाने बनाए, एक को आपने नाम दिया शर्ट्स, एक को आपने नाम दिया रेड क्लोथ्स. Where does your red shirt go now? If I have a closet of shirts and a closet of red clothes, where does my red shirt go? In both of them, right? Because a red shirt fits in both of them. A red shirt fits in your shirt ka closet as well as your red bucket ka, red clothes ka closet. Now you don't know where to put. So whenever you are solving a case, your buckets should never intersect. They must be completely separate. That is the meaning of mutually exclusive. कि वो कभी भी ओवरलैप नहीं करने चाहिए. इन एनी सिनेरियो दे मस्ट नॉट ओवरलैप एट ऑल, बिकॉज इफ दे डू, हल्के से भी ओवरलैप कर गए, खत्म. Another example. For example, I give you a giant pile of Legos, dolls, and Hot Wheels. Legos, dolls, Hot Wheels. आपका कमरा इससे पूरा का पूरा बिखरा पड़ा है. You have a lot of Lego blocks, a lot of dolls, and a lot of Hot Wheels. मम्मी आई और मम्मी ने बोला कि इन सबको सॉर्ट करो. ठीक है, आपने सोचा कि अब मेरे को इनको सॉर्ट करना है, अब मैं बकेट्स बनाऊंगा. पहले इंसान ने आया, उसने बोला कि मैं एक बकेट बनाऊंगा लेट्स से रेड टॉयज और दूसरी बनाऊंगा लेगोस की. अब वेयर डज द रेड लेगो गो? इट अगेन गोज इन बोथ ऑफ देम. ये बकेट का सेग्रीगेशन आपका गलत हो गया, बिकॉज अगेन नाउ यू डोंट नो वेयर टू पुट अ रेड लेगो. नाउ दूसरा किसी ने बोला कि मैं एक बकेट बनाऊंगा डॉल्स का
दूसरा बनाऊंगा कार्स का, तो आपके लेगो कहाँ गए? दोनों में से कहीं नहीं आ पा रहा। ये भी गलत है, बिकॉज नाउ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है, बट दे आर नॉट कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव, क्योंकि वो लेगो ब्लॉक्स को अपने अंदर कवर ही नहीं कर पाए। थर्ड इंसान आया, थर्ड ने बोला कि मैं एक काम करता हूँ, एक बकेट बनाता हूँ प्लास्टिक टॉयज का, एक बकेट बनाता हूँ सॉफ्ट टॉयज का। क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव है? इज दिस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव? Because if you see, Legos can come here, soft toys can come here, Hot Wheels can come here. आपके तीनों के तीनों उन दो बकेट्स के अंदर घुस गए, राइट और रॉन्ग? तीनों की तीनों चीजें दो बकेट्स के अंदर फिट हो गई। बोथ द buckets are mutually exclusive, plastic toys and soft toys, but are they collectively exhaustive? They are, right? किसी को कंफ्यूजन है कि नहीं है? एनी डाउट्स? ठीक है, दिस इज व्हाट मीसी इज इन जनरल। नंबर ऑफ बकेट्स मिनिमम रखनी होती है, मिनिमम नंबर ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव बकेट्स बनानी होती हैं। एंड ये अगर आपको करना आता है, यू ऑलरेडी आर अ वेरी वेरी गुड केस। दिस इज द रूल दैट यू नीड टू टिक। दैट इज व्हाट एवरी प्रोफेसर इन योर बी स्कूल, एंड स्पेशली जो बी का इंटरव्यू दे रहे हो, ए का इंटरव्यू दे रहे हो, ए एंड बी स्पेशली टेस्ट की डू यू नो दिस पर्टिकुलर थिंग और नॉट, कि म्यूचुअली इंटरसेक्टिंग बकेट्स नहीं बनानी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बकेट्स बनानी है मिनिमम, but they should be collectively exhaustive. If you know this, you're already in a very good state. Because यही सीखने में लोगों को सदियां लग जाती है। ठीक है, ये वाला पार्ट क्लियर है सबको? मीसी क्लियर है? व्हाट एक्चुअली इज मेंट बाय मीसी, क्या ये सबको क्लियर है? अब पहले प्रकार का केस दैट कैन बी आस्क्ड इन योर इंटरव्यूज, प्रॉफिटेबिलिटी। फ्रेमवर्क्स आपको मिल जाएंगे, गो रीड अबाउट देम, बट मैं आपको वही फ्रेमवर्क इन अ वेरी डिफरेंट वे सिखाने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम्पल, लेट्स से यू हैव अ पिगी बैंक। ठीक है, यू हैव अ पिगी बैंक, मनी इन इज ओके, मनी इन इज टेक्निकली जो आपने डाला, मनी आउट इज टेक्निकली जो बाहर निकला। नाउ इफ योर पिगी बैंक इज एम्प्टी, देयर आर ओनली टू रीजंस व्हाई योर पिगी बैंक इज एम्प्टी। कैन एनीवन टेल मी, बहुत ही इंट्यूटिवली सोच के, कि आपकी बचपन में गुल्लक सिर्फ दो वजह से खाली रहती थी, वो दो क्या वजह हो सकती है? कोई भी, देयर आर ओनली टू रीजंस। आई हैव टोल्ड यू टू थिंग्स, मनी इन एंड मनी आउट। अब कोई भी मुझे दो दो रीजन बता दे कि व्हाई अ पिगी बैंक इन जनरल रिमेन्स एम्प्टी। पहला रीजन, नो मनी इन, परफेक्ट, मनी इन कम है। सेकेंड रीजन, ऑल मनी आउट, परफेक्ट, टू मच मनी वेंट आउट। या तो पैसा कम अंदर आया, नॉट इनफ मनी इन, या फिर टू मच मनी वेंट आउट, यू स्पेंट ऑल योर कैश। अगर मैंने एक लेमनेड का स्टॉल लगाया, लेट्स से नींबू पानी बेच रहा हूँ, तो क्या रीजन हो सकते हैं?
मेरे नींबू पानी के घाटे में होने के, प्रॉफिटेबिलिटी कम होने के, या तो नोबडी बॉट माई लेमोनेड, या फिर यू स्पेंट अ लॉट मोर ऑन मेकिंग ऑफ द लेमोनेड, राइट? These are the only two reasons. Now let's go a bit deep. If in your B का interview, let's say they say कि आपके लेमोनेड का स्टॉल लगाया आपने, that is not profitable. थोड़ा लेमोनेड कोई भी स्टॉल लगाया, कोई भी दुकान लगाई, that is not profitable. How do you get more money? To get more money, what two things can you do? या तो sell to more people, पहली चीज. To get more money, first thing is sell to more people. ठीक है. हाँ निकिता, इंक्रीज रेवेन्यू, यस. या तो रेवेन्यू बढ़ाने के लिए क्या करोगे? या तो ज्यादा लोगों को बेच दो, वॉल्यूम बढ़ा दो, या फिर पर ग्लास का कॉस्ट बढ़ा दो. सॉर्टेड. दीज आर दी ओनली टू वेज बाय विच यू आर इंक्रीजिंग योर रेवेन्यू. या तो प्राइस पर कप बढ़ा दो, प्राइस पर ग्लास बढ़ा दो, या फिर वॉल्यूम ऑफ ग्लासेस ज्यादा बेच लो. इसके अलावा तो कुछ नहीं कर पाओगे, राइट? इफ समवन आस्क्स यू टू इंक्रीज द रेवेन्यू, दीज आर दी ओनली टू वेज. ठीक. नाउ रेवेन्यू एंड कॉस्ट. कॉस्ट इज योर सेकेंड थिंग. रेवेन्यू इज योर मनी इन, कॉस्ट इज योर मनी आउट. हमने मनी इन तो देख लिया. लेट्स लुक एट मनी आउट, एज निकिता पॉइंटेड आउट. मनी आउट क्या है? क्या करोगे मनी आउट के लिए? कॉस्ट कंट्रोल करनी है, राइट? तो दो प्रकार की कॉस्ट देख लोगे. कौन कौन सी दो कॉस्ट देख लोगे यहाँ पे? बचपन से पढ़ते आ रहे हो. परफेक्ट. फिक्स्ड देख लोगे और वेरिएबल कॉस्ट देख लोगे. एग्जैक्टली, परफेक्टली पॉइंटेड आउट बाय निकिता. फिक्स्ड देख लोगे या वेरिएबल कॉस्ट देख लोगे? फिक्स्ड कॉस्ट में क्या आ जाएगा? लेमोनेड स्टॉल का रेंट. ये तो भरना ही भरना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एक भी ग्लास बिके ना बिके, है ना? वेरिएबल में क्या देखोगे? इंग्रेडिएंट्स. ये तो पर ग्लास ही यूज होंगे, राइट? नींबू पानी बिकेगा तो ही नींबू यूज होंगे. तो आप इन दोनों पे खेल लोगे. पर किंतु परंतु, क्या हमें हर बार दोनों सॉल्व करने होते हैं? नहीं. Always and always ask the interviewer that is the problem money in, money revenue, or is the problem money out, money cost? This is your duty to ask the interviewer. You never guess. You don't solve both of them. You ask, is the problem money in or the problem money out? प्रॉब्लम रेवेन्यू है या प्रॉब्लम कॉस्ट है? उन दोनों में से एक आपको सॉल्व करना है. मनी इन का ये तरीका, मनी आउट का ये तरीका. फिक्स्ड, वेरिएबल, यहाँ पे वॉल्यूम एंड प्राइस. ठीक है. ओके. समझ आया ये कॉन्सेप्ट? परफेक्ट. समझ आया तो चलो मेरे को एक बात बताओ कि लेट्स जस्ट से कि आपका एक बर्गर शॉप है बैंगलोर में. ठीक है. लास्ट ईयर उनका पिगी बैंक पूरा भरा हुआ था. इस साल वो खाली है. देयर प्रॉफिटेबिलिटी इज वेरी लेस दिस ईयर. लास्ट ईयर बढ़िया थी, इस साल वो बहुत कम है. तो मुझे ये बताओ, व्हाट आर द की थिंग्स दैट यू वांट टू लुक एट? फर्स्ट थिंग, बताओ. समझ आया तो
शिवम, फर्स्ट क्वेश्चन प्राइस और कॉस्ट पर यूनिट पूछ। यू फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछोगे? पिगी बैंक में पैसा कम आया या पिगी बैंक से निकाला ज्यादा है? बिल्कुल फंडामेंटली सोचो ना, फर्स्ट क्वेश्चन तो यही सोचोगे राइट? कि पिगी बैंक में पैसा कम आया या पिगी बैंक से निकाला ज्यादा है। करेक्ट। अब मैं आपसे कह रहा हूँ पिगी बैंक से निकाला ज्यादा है। योर कॉस्ट इज मोर। एग्जैक्टली। समवन टोल्ड यू राइट। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्लैरिफाइंग क्वेश्चन इज द इशू मनी इन और इज द इशू मनी आउट? तो लेट्स से आई टेल यू कि लास्ट ईयर मैं टोटल 200 करोड़ का आया था मेरा रेवेन्यू। इस साल मेरा रेवेन्यू 180 करोड़ का आया है। चलो मैंने ये इन्फॉर्मेशन भी दी आपको कि लास्ट ईयर मेरा रेवेन्यू आया था 200 करोड़ का, in which my profit was 40 crores. And this year, my revenue is 180 crores, but my profit is 16 crores. अब बताओ, everybody has the information, right? Last year, revenue 200 CR, profit 40 CR. This year, revenue 180 CR, profit 16 CR. अब बताओ। एग्जैक्टली एवरी, सबने सही गेस किया, सबने सही गेस किया, सबने सही गेस किया। इशू इज कॉस्ट। अब मुझे ये बताओ, व्हाट आर द टू काइंड्स ऑफ कॉस्ट्स? रेवेन्यू कम हुआ है, पर प्रॉफिटेबिलिटी वाइज देखा जाए, यस, रेवेन्यू हैज डिक्लाइंड मोर देन कॉस्ट्स। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो व्हाट आर द की इश्यूज यहाँ पे? मुझे ये बताओ, रीजंस ऑफ रेवेन्यू डिक्लाइन क्या क्या हो सकता है? लेट्स लिस्ट देम डाउन। वॉल्यूम। वॉल्यूम माने लेस बर्गर सोल्ड। प्राइस। प्राइस माने लेसर फुटफॉल, लेसर सेलिंग प्राइस। यस, लेसर सेलिंग प्राइस। परफेक्ट। ये दोनों रीजन पता कर लिए। अब मुझे कॉस्ट का रीजन बताओ एक बार। मुझे ये बताओ, पिछले साल टोटल कॉस्ट कितना लग रहा था? 160 सीआर। इस साल लगा है 164 सीआर। कॉस्ट भी बढ़ा है। कॉस्ट बढ़ा है। पिछले साल 160 सीआर था राइट। इस साल कितना है? 164 सीआर। राइट। परफेक्ट। अब कॉस्ट को दो फैक्टर्स में तोड़ोगे, कॉस्ट इंक्रीज हुआ है। मैं सिंपल फिक्स्ड और वेरिएबल में तोड़ देता हूँ। बताओ मुझे फिक्स्ड के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? रेंट हो सकता है वन ऑफ द रीजंस, स्टोर का रेंट ज्यादा भरा हो। ठीक। इलेक्ट्रिसिटी बिल इंक्रीज। शेफ्स। यस यस। और कीप ऑन थिंकिंग। मल्टीपल एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एक्सपेंस बढ़ा दिया। शेफ्स विल काउंट इन वेरिएबल कॉस्ट, बट शेफ्स कैन आल्सो कम इन फिक्स्ड कॉस्ट प्रखर, इफ लेट्स से कॉन्ट्रैक्चुअल है कि आपने एक साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करा ही करा है, फिर तो वो एक साल की वो कॉस्ट हो गई राइट। इवन इफ यू सोल्ड लेस बर्गर्स यू आर पेइंग देम। करेक्ट। आप शेफ को तो ऐसे तो नहीं देते हो। परफेक्ट। लीगल, इफ एनी कंटिजेंट लाइबिलिटी मटेरियलाइज्ड। परफेक्ट 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 परफेक्ट। स्टोर एक्सपेंशन। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। बहुत बढ़िया। सबको समझ आया, पर एक चीज, एक बहुत ही फंडामेंटल चीज समझ आई।
कि प्रॉफिटेबिलिटी का केस को जैसे ही रेवेन्यू और कॉस्ट में तोड़ा, और रेवेन्यू को जैसे ही प्राइस और वॉल्यूम में तोड़ा, और कॉस्ट को फिक्स एंड वेरिएबल में, जिंदगी आसान हो गई कि नहीं हो गई? दिमाग चलने लग गया, आइडियाज आने लग गए। अगर मान लो बैंगलोर के इंटरव्यू में बैठे हो, अहमदाबाद के में बैठे हो, लखनऊ के में बैठे हो, कोई बोल दे कि फलानी चीज का प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है, कर लोगे सॉल्व? अब दे दोगे पॉइंट्स में बढ़िया 5 मिनट में? पूछ लोगे उनसे क्लैरिफाइंग क्वेश्चन? याद रहेगा? पिगी बैंक याद रहेगा? मनी इन मनी आउट याद रहेगा? कि एक पिगी बैंक के खाली होने के क्या ही दो रीजंस होते हैं, या तो पैसा कम अंदर आया या ज्यादा पैसा बाहर गया। रेवेन्यू एंड कॉस्ट। क्लियर है सबको इतना? गेस्टिमेट्स का एक अलग सेशन रिकॉर्ड किया है भाई, वो भी एक बार देख लेना आप। दैट इज अपलोडेड ऑन यूट्यूब ऑल्सो, वो आप देख लेना एक बार, गेस्टिमेट्स वाला सेशन। उससे आपके गेस्टिमेट भी सॉल्व हो जाएंगे। बट ये वाला पार्ट क्लियर है ना सबको? इसमें तो कोई गलती नहीं करेगा अब। इंटरव्यूअर ने पूछ लिया कहीं की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है, सीधे बढ़िया बता दोगे सिर्फ, विदाउट एनी टेंशन। पक्का मान के चलूं? क्लियर है तो एक थम्स अप कर दो भाई। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ जाते हैं। सॉर्टेड। चलो। अब कई बार क्या होता है, कई बार बिजनेस ब्रोकन नहीं होता, बिजनेस इज ओके, बढ़िया चल रहा है, ठीक है, पर उनको कुछ नया करना होता है। बहुत टाइप के केसेस ऐसे अपने इंटरव्यूज की ट्रांसक्रिप्ट्स में आप पढ़े होंगे कि, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अपने घर के पीछे एक स्लाइड बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए? ठीक है। एट टाइम्स क्या होता है, बिजनेस बढ़िया चल रहा है बट उनको कुछ नया इंप्लीमेंट करने का मन होता है। आपके घर में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है बट आपको कुछ नया इंप्लीमेंट करने का मन है। करेक्ट? तो मुझे एक बात बताओ, अगर कोई मुझसे ये कहे कि मुझे पार्क में स्लाइड बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए, पार्क में स्लाइड बनानी चाहिए कि नहीं, या मेरे को अपने घर में स्लाइड बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए, तो पहली चीज मैं क्या सोचूंगा? मैं सीधे तो हाँ नहीं बोल दूंगा कि चलो मेरे पास पैसा पड़ा है भाई, पैसा पड़ा है तो बना देते हैं। ऐसा नहीं करोगे ना। उसके लिए एक बेसिक सी चीजें चेक करोगे। क्या चेक करोगे बेसिक सी चीज? पहली चीज, यूटिलाइजेशन परफेक्ट। डिमांड एग्जैक्टली exactly, कि बच्चे हैं भी कि नहीं है। बच्चे ही नहीं है तो स्लाइड क्या बनाऊंगा? डज इट हैव यूसेज, डू वी हैव फाइनेंस? एग्जैक्टली। बच्चे होने चाहिए, बच्चे नहीं है, यूसेज नहीं होगा, यूसेज नहीं होगा, स्लाइड बना के क्या करोगे? दूसरी चीज, एज निकिता पॉइंटेड आउट, डू वी हैव द फाइनेंस? कि मेरे पिगी बैंक में पड़े हैं 100 रुपए, स्लाइड बन रही है 10,000 की, नहीं बना सकता, राइट? तीसरी चीज, यस, कैन वी बिल्ड इट? मेरे पास पैसा भी है, उसका यूज भी है, पर क्या मैं उसे बना सकता हूँ कि नहीं, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्या मेरे पास लकड़ी है? क्या मेरे पास हथौड़ा है? क्या मेरे पास लेबर है या लोग हैं जो उसको बिल्ड करेंगे? मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत नीड है, पर मेरे पास बनाने के साधन नहीं है, तो भी वो चीज नहीं बन सकती, राइट? करेक्ट? यू कैंट मेक अ थिंग लाइक दैट। समझ आया? दिस इज कॉल्ड मार्केट एंट्री की प्रॉब्लम। मार्केट एंट्री की ये सबसे बड़ी समस्या होती है भाई, कि मार्केट एंट्री में लोगों को समझ ही नहीं आता है। लोगों को ये तो समझ आ जाता है कि चलो ये कर लेते हैं भाई, क्या कर लेते हैं, पैसा भी पड़ा है, नीड भी है, बट ये समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। तो फिर बैंड बज जाती है। तो अब मुझे ये बताओ,
कि अगर कोई तुमसे कहे कि मुझे मार्केट में एंटर करना चाहिए या मुझे मार्केट में एंटर नहीं करना चाहिए, क्या करोगे? क्या फ्रेमवर्क लगाओगे? मैंने तुम्हें अभी तीन चीजें बोली। मार्केट एंट्री का यही फ्रेमवर्क होता है, ACE, एस। इफ अ क्लाइंट, लेट से लेमोनेड का ही एग्जांपल लेता हूं, शुड आई ओपन अ न्यू लेमोनेड स्टॉल इन अ न्यू सिटी? अभी हम नींबू पानी बेच रहे थे, राइट? लेट से तुम्हारा क्लाइंट नींबू पानी बेचने वाला ही है, वो आता है और कहता है कि क्या मुझे नए शहर में नया नींबू पानी का नया स्टॉल लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? तो तुम अपने आप से तीन सवाल पूछोगे। तीन सवाल क्या होंगे वो? पहला तो अट्रैक्टिवनेस, जो भी हमने देखा, डिमांड, यूटिलाइजेशन, नीड, जो जो आप सबने बोला वो सब कुछ सही है। कि हम अट्रैक्टिवनेस देखेंगे सबसे पहले। अट्रैक्टिवनेस क्या है? कि डू पीपल इन द सिटी इवन लाइक लेमोनेड? इज द सिटी बिग इनफ? आर देयर ऑलरेडी लेट्स से 15-20 लेमोनेड स्टैंड्स एग्जिस्टिंग? अगर मान लो एक शहर में 20 ऑलरेडी लोग बेच रहे हैं तो मैं क्यों बेचूं? तो इज द सिटी अट्रैक्टिव? इज द कंपटीशन टू हाई? पहला कॉन्सेप्ट हो गया अट्रैक्टिवनेस। दूसरा है, समवन पॉइंटेड आउट, आई एम नॉट श्योर किसने, केपेबिलिटीज। केपेबिलिटीज का मतलब, डू आई हैव द इनफ, मेरे पास क्या इनफ नींबू है कि मैं दूसरी जगह एक दुकान तो खोलना चाहता हूँ, अट्रैक्टिव भी है, पर क्या मेरे पास इनफ नींबू है? या फिर हमने स्लाइड वाले एग्जांपल में देखा था, क्या हमारे पास लकड़ी पड़ी है? लकड़ी ही नहीं है तो स्लाइड क्या बनाओगे? इवन इफ यू हैव बच्चे, रॉ मटेरियल्स, एग्जैक्टली प्रकार, रॉ मटेरियल्स है कि नहीं है भाई? डू आई हैव इनफ लेमन्स? ऑल्सो, डू आई नो हाउ टू सेल हियर? क्या मुझे पता है बेचना कैसे है? लेट से आप टीयर 1 में बेचते हैं, आपको पता भी है टीयर 2 में बेचना कैसे है। डू यू हैव एनी प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ सेलिंग? अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डू यू हैव एनी प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ सेलिंग? इन मार्केट एंट्री के केसेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, डू यू हैव अ प्रायर एक्सपीरियंस और नॉट? क्योंकि नहीं है प्रायर एक्सपीरियंस तो बहुत शुरू से शुरू करके मुश्किल होती है, बिकॉज एवरी डेमोग्राफिक, एवरी ज्योग्राफी इज डिफरेंट। तो नंबर 1 इज रॉ मटेरियल्स है कि नहीं है, इनफ लेमन्स है कि नहीं है। नंबर 2, प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ सेलिंग हियर है कि नहीं है। दिस इज योर केपेबिलिटीज। व्हाट इज योर नंबर 3? नंबर 3 इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज, क्या लेट से अट्रैक्टिव भी है? नो वरीज आरुष, अट्रैक्टिव भी है, केपेबिलिटीज भी है, बट इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं है। लेट से setting up a new stall costs me 100 rupees, but I only make 1 rupee profit. So is it a good deal or a bad deal? It's a very bad deal, right? Market is attractive, market attractiveness, competition नहीं है, city बढ़िया है, city is attractive, people like lemonade. Capabilities wise, we have the capability, we have enough lemons and raw material, we have the experience of selling also in such a city or such a environment. बट इकोनॉमिकली जब मैं देख रहा हूँ, तो 100 रुपए का सेटअप कॉस्ट आ रहा है, 1 रुपए मेरा प्रॉफिट हो रहा है, तो इट इज अ बैड डील। तीनों अलाइन हो रहे हैं, एंटर द मार्केट। वाई? बिकॉज यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट 100 रुपए। एक्चुअल दुनिया में क्लाइंट आएगा या जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलेगा, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात होती है, राइट? एक भी चीज अट्रैक्टिव नहीं है, लीव इट। ठीक है। लास्ट पॉइंट इज एंट्री स्ट्रैटेजी। एंट्री स्ट्रैटेजी इज वेरी सिंपल। तुम्हें एक शहर में नींबू बेचना है, नींबू पानी बेचना है, सिंपल है। दो ही तरीके से बेच सकते हो।
या तो खुद का स्टॉल लगा लो, या कोई एग्जिस्टिंग बेचने वाले का स्टॉल खरीद लो, या उससे पार्टनर कर लो। करेक्ट? या तो जॉइंट वेंचर कर लो, या अक्वायर कर लो, या खुद बेच लो खुद का नया सेटअप करके। यही तीन है, बिल्ड योर ओन स्टॉल, और बाय समवन एल्सेस, और पार्टनर विद समवन एल्स। सिंपल। दिस इज योर मार्केट एंट्री स्ट्रेटजी। बाय, पार्टनर, ओन। ठीक? क्लियर है सबको? मार्केट एंट्री का केसेस अगर वो कभी इंटरव्यूअर पूछ ले कि लेट्स से आई हैव टू लॉन्च अ प्रोडक्ट, शुड आई और शुड आई नॉट, क्या उसको ये स्टेप वाइज प्रोसीजर बता दोगे कि मैम मैं एस देखूंगा, या सर मैं एस देखूंगा, अट्रैक्टिवनेस, कैपेबिलिटीज, इकोनॉमिक्स, तीनों अलाइन हो रहे होंगे, घुस जाओ मार्केट में। एंट्री स्ट्रेटजी क्या होगी? इन तीनों में से एक। एक्सक्यूज मी सर, मुझे एक चीज पूछनी थी कि प्रायर एक्सपीरियंस कितना इम्पोर्टेंट है। लाइक अगर कोई मान लो नया प्रोडक्ट, मान लो सर्विस बेस्ड कोई प्रोडक्ट बनाता है, आईटी प्रोडक्ट बनाता है, तो उसको मान लो अब प्रायर देखो, अब प्रायर एक्सपीरियंस से आपकी एंट्री स्ट्रेटजी डिसाइड होती है भाई। प्रायर एक्सपीरियंस है तो खुद का ओन कर लो। ठीक? प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है तो बेटर स्ट्रेटजी वुड बी टू पार्टनर विद समवन हु इज ऑलरेडी डूइंग इट। ओके, समझ आ रहा है? दिस इज हाउ एंट्री स्ट्रेटजी इज डिसाइडेड। अकॉर्डिंग टू द इफ यू एक्सपीरियंस। अकॉर्डिंग, इफ यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, लेट्स से आप ऑलरेडी 5 टियर 1 सिटीज में एक्सपेंड कर चुके हो अपना जो भी आपका लेमोनेड स्टॉल है, राइट? तो अब छठी टियर 1 सिटी में आप खुद कर लोगे इफ इट इज इकोनॉमिकली फीजिबल तो। बट आपको टियर 1 में एक्सपैंड करने का बिल्कुल आइडिया नहीं है एंड आपकी रिस्क एवर्स हो थोड़े। ठीक है? तो isn't it a better strategy कि firstly tie up with someone who already is selling there? ओके, Understandable, right? गॉट इट। So this is how your strategy is decided कि भाई खुद का लगाना है या बाय पार्टनर करना है। ठीक? क्लियर है सबको? अगर कोई कहीं भी एंटर कराएगा, कोई भी प्रोडक्ट दे देगा, तो मैं कर लोगे अब एंटर किसी मार्केट में? बता दोगे उन्हें कि क्या क्या देखना है, ये देख के एंटर करेंगे? When do you decide to buy an existing venture? You decide to buy an existing venture when opening your own venture is not at all economically feasible. For example, मैं आपको एक सिंपल सी वो देता हूँ कि भाई अगर मान लो एक विदेशी कंपनी है जो कि इंडिया में फेमस है बहुत ज्यादा, ठीक है, पर उसको इंडियन मार्केट में सेल करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है और उसकी कोई सप्लाई चेन यहाँ पे सेटअप नहीं है, तो आप एक बात बताओ, वो खुद की सप्लाई चेन सेटअप करके मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चे, या फिर वो एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी यहाँ पे जिसकी लोकल इंडियन मार्केट में बढ़िया पकड़ है उसके साथ टाई अप कर ले या उसे खरीद ले और उसकी एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन को यूज कर ले? बताओ विच इज अ बेटर स्ट्रेटजी? स्पेंडिंग मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन सेटिंग अप योर ओन डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स एंड एवरी, लेट्स से अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल हो, आपको रिटेल में आप चिप्स का ब्रांड ले लो भाई, सो व्हाट इज मोर फीजिबल कि चिप्स मैन्युफैक्चरर्स के साथ टाई अप कर लो एंड ऑलरेडी अक्वायर अ स्मॉल कंपनी जिसका सब कुछ सेटअप है और जिसका इंडिया में थोड़ा सा चला पूरा एटलीस्ट सेटअप पूरा का पूरा तैयार है, तो आप उसको अक्वायर ही करना चाहोगे, राइट? हाँ नहीं, मतलब मेरा कंफ्यूजन था कि जॉइंट वेंचर और अक्वायर में व्हेन डू यू डिसाइड व्हाट टू डू? जॉइंट वेंचर यू डू विद समवन, अगर जो एग्जिस्टिंग ब्रांड है जिसके साथ जॉइंट वेंचर कर रहे हो उसकी भी मार्केट रेपुटेशन अच्छी है। ओके, इफ यू डोंट वांट टू पार्टनर विद अ ब्रांड जिसकी खुद की मार्केट रेपुटेशन बहुत खराब है, राइट? हाँ हाँ ठीक है, गॉट इट। यू अक्वायर स्मॉल ब्रांड्स जिनका सेटअप पूरा खुद का तैयार है, आपने सीधे अक्वायर करके आपका नाम बहुत बढ़िया है, आपने अपना नाम दे दिया, ठीक है। यूज सब कुछ उनका कर लिया। पार्टनर आप किसके साथ करोगे? पार्टनर आप उसके साथ करोगे जिसकी खुद की ब्रांड रेपुटेशन बहुत बढ़िया है, राइट? या सो यू कोलैब, इट्स अ प्रॉपर कोलैब लाइक नाइकी जॉर्डन भाई, हाँ बोथ ऑफ देम हैव क्रेजी रेपुटेशन,
कोलैब कर लिया। टाटा स्टारबक्स सॉर्ट ऑफ। टाटा स्टारबक्स, यस। Raghav, हाँ जी। so one question that I had is कि let's just say that someone did the calculation और उसमें जो own करने का cost है, like setting up from scratch, it turned out to be lesser than जो buying के options है available. लेकिन still they decide to go with buying because like it's more convenient. Can that be a strategy as well? Businesses don't run on convenience of anyone, bhai. No, but like If some saves time and stuff. saves time, but again, autonomy is also something that is very, very important. Okay. आप खुद का सेटअप करोगे तो आप खुद की क्वालिटी चेक्स भी तो लगाओगे. इफ द कॉस्ट इज लेस, टाइम वाइज तो देखो यार, नो वन वांट्स टू एंटर 2 मिनट में या 2 दिन में, राइट? आपको इंटरव्यूअर बोलेगा कि मेरे पास 2 साल में एंटर करना है. अब अगर 2 साल में आपसे खुद की सप्लाई चेन सेटअप हो रही है या खुद का आपका सारा का सारा सिस्टम बन रहा है, and it is much more economically feasible than, let's say, buying a new one. So I would rather build my own, having better quality checks, right? Yeah, fair. But let's say कि आपको इंटरव्यूअर ने बोल दिया कि मुझे 2 ही महीने में घुसना है, फिर तो ऑप्शन ही नहीं है खुद का सेटअप करने का. तो फिर तो यही बोलोगे कि 2 महीने में घुसने के लिए या जल्दी घुसना है बहुत, तो फिर तो you will have to buy, right? फिर तो there is no other option. So also depends on the timeline in which you want to enter. If you want to enter आराम से, do it. नहीं करना, जल्दी करना है, खरीद लो. ठीक है. मेरे को एक डाउट पूछना था, जैसे मान लो कि इंटरव्यूअर पूछता है कि चलो आप 2 साल एमबीए कर लोगे हमारे पास से, उसके बाद फिर मान लो कि आपको एक सिटी के अंदर आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है, बट आपके पास सब कुछ है, इकोनॉमिक्स भी है, मतलब फिजिबली आपके पास पैसे भी हैं, रॉ मटेरियल्स भी हैं, बाकी जो फैक्टर्स हैं वो अलाइंड हैं, बट आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब एक भी, मतलब आपने इस इंडस्ट्री में काम ही नहीं किया, तो आप विल यू बी स्टार्टिंग इट, और व्हाट विल बी योर स्ट्रैटेजी, की मतलब कैसे डिसाइड करोगे आप कि खुद का ओन करना है या नहीं करना? यार मुझे बात बताओ, इन जनरल इजंट इट ऑलवेज एडवाइस कि जिस इंडस्ट्री में काम करना है पहले उस इंडस्ट्री का घाट घाट का पानी पी लो? मतलब जैसे मेरे को एक एग्जांपल याद आ रहा है शायद से एयरबीएनबी का, तो उसमें ऐसा था कि जो फाउंडर्स थे उनको तो लाइक होटल्स का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था दैट, और उसके बावजूद मतलब दे बिल्ट अप अ वेरी सक्सेसफुल चेन. यार तो ओयो के फाउंडर ने डिग्री, मतलब एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि ओयो के फाउंडर ने डिग्री नहीं करी तो फिर नहीं करो एमबीए. दैट कैन आल्सो बी ए क्वेश्चन, राइट? हाँ, मतलब कर तो, मतलब लोग तो उसमें भी काउंटर एग्जांपल तो कर ही सकते हैं, मतलब इंटरव्यूअर्स की, वो भी बिजनेस बिल्ड कर ही रहे हैं, मतलब बिना यार एक्सपीरियंस. अब बिजनेस बिल्ड तो देखो दुनिया कर रही है बिना एक्सपीरियंस के. बट अगर मेरा सवाल ये है कि यू डोंट हैव, नन ऑफ दीज क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड फॉर एनोमलीज भाई. एनोमलीज तो एग्जिस्ट करते ही हैं. Dropouts are the ones who have created $1 trillion companies, so it is not advisable to drop out, right? जनरल सवाल बोल रहा हूँ मैं आपको कि अगर आपको किसी इंडस्ट्री में बिजनेस करना है, समवन मेंशन्ड कंसल्टिंग, व्हाई डू पीपल इन जनरल आंसर कि हमें कंसल्टिंग में जाना है? द आंसर ऑफ व्हाई कंसल्टिंग इज ओनली वन. हम समझ में भी यही देते थे भाई. इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क अक्रॉस एवरी डोमेन. 3 साल कंसल्टिंग में काम करोगे, 8 इंडस्ट्रीज में, 6 इंडस्ट्रीज में प्रोजेक्ट्स करोगे. ठीक है, 6 इंडस्ट्रीज में. उसके बाद यू कैन, maybe we can see prior experience in economic feasibility too, because learning also needs finance. Yes, absolutely, learning also needs finance. That's the whole point भाई. आपको जब भी, it is always advisable, right? आप देखोगे, if someone doesn't have a teaching experience, लोग क्या करते हैं? First they teach in some coaching, right? They gather experience, and then when they know how to teach, how students are able to understand उनकी बातें, ये सब जब वो कर लेते हैं, then they open up their own, right? जनरल दुनिया के लिए क्वेश्चंस बनते हैं. इन जनरल यू डोंट हैव क्वेश्चंस फॉर, मतलब एनोमलीज. तो एनोमलीज में इफ दे ट्राई टू काउंटर यू, कह देना कि आई वुडंट ओपन अप माय ओन बिजनेस, आई वुड फर्स्ट रादर get into consulting and try to work on projects related to the domain in which I am interested. And once I have appropriate knowledge and appropriate understanding of how that particular domain functions, that is when I would like to invest full time in a business in that particular domain. Got it. Straight after 2 years, I wouldn't want to jump up.
Okay. Until and unless I have something extremely unique that is actually a problem जो कि कभी solve ही नहीं हुई है. If I have a problem that has never been solved and I am damn sure, absolutely confident, then I would rather seek help of NSR cell of IIM Bangalore or IIM A Ventures. और Got it. every B school has their own incubation center, right? Got तो वो it. इसीलिए बना हुआ है ताकि आप लोग ये सब एक्सपेरिमेंट वहां जाके कर सको. Got it. Thank you. ठीक. सबको एंट्री क्लियर है? मार्केट एंट्री में क्या क्या टेस्ट करना है, कैसे स्ट्रेटेजी बनेगी, क्या क्या होता है, सबको बढ़िया? चलो परफेक्ट. ये वाला पार्ट भी क्लियर है. तो अब एक काम करते हैं, एक वेरी वेरी प्रोमिनेंट काइंड ऑफ केस अब अगले प्रकार का देखते हैं. अब पर्सनल IIM बैंगलोर इंटरव्यू क्वेश्चन जो मेरे से ही पूछा गया था. डिजाइन अ प्रोडक्ट. डिजाइन अ प्रोडक्ट मेरे से ये पूछा गया था. डिजाइन अ फिटनेस ऐप मेरे को IIM बैंगलोर ने बोला. अब स्पाइरल करने का कोई सेंस नहीं है, राइट? मैं अगर आपसे बोलूं डिजाइन अ वेंडिंग मशीन फॉर अ ब्लाइंड पर्सन, हाउ वुड यू गो अबाउट इट? नहीं निकिता. डिजाइन अ वेंडिंग मशीन फॉर अ ब्लाइंड पर्सन. नो 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 नो. एनीवन. Become blind. Close your eyes. Close your eyes. You have to design a vending machine for a blind person, so become blind. किसी ने अगर मेरे से SPGIMR के मॉक GI 2 लिया है कभी, तो मैं ये बोलता था ना, wear the hat. If you have to design a product for someone, become that person. Then see कि आपको खुद के लिए डिजाइन करना है. So if someone asks me design a vending machine for a blind person, I will become blind. अपनी आंखें बंद कर लूंगा ऐसे. अब मैंने अगर अपनी आंखें बंद कर ली, I am hungry, I am standing in front of a vending machine and मेरी आंखें बंद है. Can I see snacks? क्या मुझे वो स्नैक्स दिख रहे हैं उस वेंडिंग मशीन के अंदर? I think we can have a voiceover type of. Exactly. Can I see the snacks? No. Can I see the buttons? No. अब बताओ. I want a chocolate. Correct. मुझे ना स्नैक्स, मुझे ना चॉकलेट दिख रही है ना बटन दिख रहे हैं. So the problem isn't food here, right? The problem is I don't know how to push a button and how to get the chocolate. That is the problem. समझ आई सबको प्रॉब्लम क्या है? सबको समझ आई? एक एक को. अब जैसे ही प्रॉब्लम समझ आ गई, लेट योर माइंड लूज, गो क्रेजी. सोचो. बटन्स विद ब्रेल. बटन्स में ही ब्रेल हो. बटन्स दैट कैन टॉक. AI assistant. You talk to the machine, machine gives you chocolate. जो मन करे सोचो. Let your mind loose now because you have identified the problem. Once you have identified the problem, go ahead. Simple. Now, prioritization. पहला स्टेप क्या हुआ? आइडेंटिफिकेशन. सेकेंड स्टेप क्या हुआ? आइडिएशन. थर्ड स्टेप क्या हुआ? प्रायोरिटाइजेशन. ये मैं आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ही सिखा रहा हूँ. फर्स्ट स्टेप प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, सेकेंड स्टेप इज आइडिएशन, थर्ड स्टेप इज प्रायोरिटाइजेशन. अब आपको आपके दिमाग ने बहुत सारे आपको आइडियाज दिए, उनमें से प्रायोरिटाइज 2-3 एंड टेल देम कि ये 2-3 पहले उसमें इंप्लीमेंट कर दो. मेरे को प्रायोरिटाइज करना होगा, मैं कहूंगा मशीन से लाउडली बात करना कईयों के लिए एम्बैरेसिंग हो सकता है, तो मैं इस वाले को थर्ड पे रख देता हूँ. सेकेंड वाला ब्रेल इज गुड. आई लाइक कि बटन्स में ब्रेल होना चाहिए, बट अगेन एवरीबडी डजंट नो ब्रेल, तो इसको मैं सेकेंड पे रख देता हूँ.
मेरे लिए विनर क्या है? टॉकिंग बटन्स, कि मैं बटन को पुश करूं, वो बटन मुझे बता दे यू हैव पुश द बटन फॉर किटकैट। जेस्चर रिकॉग्निशन, वेरी गुड वत्सला, परफेक्ट पॉइंट। नाउ अगेन मेरा आंसर आपका आंसर कंप्लीटली अलग हो सकता है, बट मेरी प्रॉब्लम और आपकी प्रॉब्लम सेम है, राइट? अब आपको ये समझ आ गया कि प्रॉब्लम सेम होनी चाहिए। एंड हाउ डिड आई अराइव एट द प्रॉब्लम? बाय बिकमिंग द पर्सन जिसके लिए मुझे डिजाइन करना है। उसके शूज में अपने पैर डालते ही आई एम कंप्लीटली एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉब्लम इज, राइट? क्लियर है सबको? Not at all a daunting task. Not at all a daunting task. Just be that person. Simple. ठीक, ये तीन परफेक्टली क्लियर है सबको? परफेक्टली क्लियर है तो मुझे एक बात बताओ, इफ आई टेल यू दैट शुड आई सेल विंटर जैकेट्स इन सहारा डेजर्ट, ये कौन सा केस है? बताओ, इफ आई आस्क यू शुड आई सेल विंटर जैकेट्स इन सहारा डेजर्ट, सबको समझ आ रहा है मार्केट एंट्री का केस है? शुड आई सेल समथिंग समवेयर, शुड आई एंटर अ न्यू मार्केट और नॉट? इसको दूसरे तरीके से रिफ्रेम कर दूं, शुड आई एंटर अ न्यू मार्केट और नॉट? तब सब एक सिंक में बताओ क्या तीन चीजें टेस्ट करते हैं, व्हाट इज द फ्रेमवर्क? ए सी ई, व्हाट इज ए? अट्रैक्टिवनेस। अट्रैक्टिवनेस चेक करेंगे सबसे पहले किसकी? सहारा डेजर्ट की। पहली चीज क्या टेस्ट करोगे? पीपल टेस्ट कर लो मे बी। यस, डिमांड, डज द डिमांड एग्जिस्ट? डू द पीपल फील कोल्ड? आर द पीपल आस्किंग फॉर जैकेट? डिमांड टेस्ट करोगे अट्रैक्टिवनेस में, राइट? आर देयर अ लॉट ऑफ जैकेट्स ऑलरेडी बीइंग सोल्ड? इज देयर अ लॉट ऑफ कंपटीशन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग? यही सब टेस्ट करोगे जो हमने पुराने वाले में बात करी थी, लेमनेड वाले में सेम चीज है। क्या लोग लेमनेड प्रेफर करते हैं? क्या वो शहर उतना अट्रैक्टिव है कि नहीं है? पहले बात तो ये टेस्ट करोगे ना, इस सहारा डेजर्ट कोल्ड? क्या सहारा डेजर्ट में ठंड पड़ती है कि नहीं पड़ती? फिर क्या लोग जैकेट प्रेफर करते हैं कि नहीं करते? थर्ड, कॉम्पिटिटिवनेस है कि नहीं है? अट्रैक्टिवनेस वाला गेट, मान लो ये गेट है, तीन गेट लगे हुए हैं अट्रैक्टिवनेस, पहले गेट से पार हो गए मतलब अट्रैक्टिव है। फिर क्या चेक करोगे? केपेबिलिटी। ठीक है, कैन यू मेक द जैकेट्स? डू यू हैव द रिक्वायर्ड मशीन्स? डू यू हैव द ट्रक्स? जो भी होता है, सारी की सारी कैपेबिलिटीज टेस्ट करोगे। एंड डू यू हैव एनी प्रायर सेलिंग एक्सपीरियंस ऑफ सेलिंग जैकेट्स इन अ डेजर्ट और इन एन एरिया लाइक सहारा डेजर्ट? ये वाली चीजें करोगे कैपेबिलिटीज में टेस्ट, करेक्ट? थर्ड गेट, सेकंड गेट से भी पार हो गए, थर्ड गेट में पहुंच जाओगे। सिंपल इकोनॉमिक मैथ, विल आई गेट रिच? क्या मुझे जेब में पैसा आएगा कि नहीं आएगा? विल माई पिगी बैंक बिकम फुल और नॉट? क्या करोगे? कॉस्ट ऑफ जैकेट। पहले तो आप देखोगे मेरी जैकेट का कॉस्ट क्या है। अब मैं तुम्हें एक बेसिक तरीका सिखा रहा हूँ इकोनॉमिक्स भी टेस्ट करने का। फॉर एनी प्रोडक्ट तुम पहली चीज ये देखोगे कि तुम्हारा कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ जैकेट क्या है। तो लेट्स से मेरा कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ जैकेट इज 100 रुपए। सेकेंड चीज देखोगे वहां के लोगों की स्पेंडिंग कैपेबिलिटी कितनी है। लेट्स से सहारा डेजर्ट में लोगों के पास ही 20 रुपए है, तो विल यू एवर मेक प्रॉफिट बाय सेलिंग जैकेट्स इन सहारा डेजर्ट? किसी का बन रहा है प्रॉफिट? मेरा तो नहीं बन रहा भाई। मैं गेट 3 पे रुक गया, तो क्या मैं विंटर जैकेट्स बेचूंगा सहारा डेजर्ट पे?
किसी भी गेट पे रुका मैं एस के अट्रैक्टिवनेस, कैपेबिलिटी और इकोनॉमिक्स में से किसी भी गेट पे रुका, आई विल नॉट से यस टू एंटरिंग अ न्यू मार्केट। एंड इन तीनों के ही बेसिस पे मैं फिगर आउट करूंगा मेरी स्ट्रैटेजी क्या होगी। हो गया रिकैप? हो गया? अब लेट से मैं तुम्हें एक और स्टेटमेंट दे रहा हूं, डिजाइन अ न्यू और इन्वेंट अ न्यू अलार्म क्लॉक फॉर समवन हु इज डेफ। इन्वेंट अ न्यू अलार्म क्लॉक फॉर समवन हु इज डेफ। तो पहली चीज क्या करोगे? बिकम डेफ। परफेक्ट भाई। पर्सन पेन सोल्यूशन। For inventing something, you have to actually turn off your own senses and feel what the user feels. जो तुम प्रोडक्ट इन्वेंट करोगे उसको यूज करके जो यूजर को तुम फील कराना चाहते हो, या जो यूजर सॉरी वो एक्चुअली फील करता है अभी, उसको फील करो। इन्वेंटेड एज द यूजर। तुमने अपने कान ढके, तुम डेफ बन गए। परफेक्ट। सेकंड चीज क्या करोगे? तुमने अपने कान ढक लिए, तुम बहरे बन गए। सेकंड चीज क्या करोगे? बताओ, what is the second thing that you will do in this particular? Yeah, isolating the pain point, all of this is good, Nikita, but what is the second thing after becoming deaf that you will do in this case? अभी तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन चल रहा है, मैं कह रहा हूँ प्रॉब्लम ही आइडेंटिफाई करने के लिए पहली चीज क्या हुई? मैं डेफ बन गया। दूसरी चीज मैं क्या करूंगा? एक अलार्म क्लॉक अगर डिजाइन करनी है तो सेकंड थिंग इज एग्जैक्टली शिवम, बिकम अ डेफ एंड फॉल asleep. पिछले वाले में जब वेंडिंग मशीन डिजाइन करनी थी तो बने थे आप, क्या बने थे? यू बिकेम ब्लाइंड, राइट? देन यू वर हंग्री and you were standing in front of a vending machine. That is when you identified the problem, right? Putting yourself in the exact situation. यहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई करोगे? By becoming deaf, then falling asleep, because alarm clocks are used to wake you up. तो पहले मैं सो जाता हूँ। Correct. Now comes the problem. I am asleep. Alarm clock goes beep beep beep. I cannot hear it. अब समझ आई? I am asleep. Alarm clock goes beep beep beep. I cannot hear it. प्रॉब्लम पेन पॉइंट आइडेंटिफिकेशन हो गया है कि मैं सुन नहीं पा रहा हूं जब नींद में हूं। आई नो तुम सबने सोचा यही है, बट दिस इज इन जनरल टफ से टफ केस आ जाए। पूरी पूरी प्रॉब्लम जड़ तक सोचोगे ना, कभी कुछ मिस आउट नहीं करोगे। Think in your head like this. Take those 5 extra seconds to fall asleep also. So that तुम पूरा पेन पॉइंट आइडेंटिफाई कर रहे हो। यू आर अ परफेक्ट प्रोडक्ट मैनेजर देन, one that is appreciated. Why? Because thinking like a 5-year-old is the most important thing in product management. हो गई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई? गो क्रेजी। सोचो अपने दिमाग में आइडिया। बताओ, what are the ideas in your head now? Think. Go bonkers. Higher vibration intensity. Waterfalls on the person. Maybe a bright flashlight. बहुत तेज लाइट निकले अलार्म से, जो पूरा एकदम ऐसे रूम में का दे। उसकी आंखें तो सही है बंदे की भाई। टारगेट ऑन अदर सेंसेस मे बी। वेयरेबल अलार्म, यस। मे बी आई कैन डिजाइन अ वॉच। धड़ धड़ धड़। ठीक। मे बी समथिंग smell related, maybe touch related. Variable temperature bed that changes progressively. Very good. Now it's up to you to prioritize. वहां पे you have to prioritize तुम्हें कौन सा फीचर लेना है।
बट समझ आया that you when you design a product, how do you actually think? तो सर मतलब हाइपोथेटिकल सॉल्यूशन भी सोच सकते हैं, मतलब कुछ भी ऐसे। हाइपोथेटिकली है भाई, हाइपोथेटिकल ही तो सॉल्यूशंस मतलब होते हैं तो वो तो कहेंगे ना कि फीजिबिलिटी इसको। तो शेकेबल वॉच, वॉच तो फीजिबल है। टेकेबल वॉच नहीं, बट ये वेरिएबल टेम्परेचर बेड हो गया जैसे, इसमें तो मतलब हाँ, तो प्रायोरिटाइजेशन तभी तो काम आती है कि ये चीज, प्रायोरिटाइजेशन फ्रेमवर्क ही काम आता है कि अब कुछ चीज बहुत ही फीजिबल नहीं है। जैसे एमवी ने बोला कि पानी गिरा दो सामने वाले में, दैट इज नॉट अ फीजिबल सॉल्यूशन, हम्म, राइट? वो फीजिबल सॉल्यूशन में नहीं है ना पानी गिराना। ठीक है, वन ऑफ द सॉल्यूशन जो तुम्हारे दिमाग में आया, बट देन यू प्रायोरिटाइज एंड टेल देम 2-3 फीचर्स, राइट? कि मे बी अलार्म जो है वो एक फ्लैश लाइट टाइप हो, जो लाइट काफी तेज, मतलब काफी ज्यादा रोशनी करता है, राइट? यू कैन प्रॉब्ली कनेक्टेड टू अ ट्यूब लाइट और वो एकदम से जल जाए उस टाइम पे, तो तुम्हारी आंखें तो खुल जाएंगी अपने आप, या ब्लिंक करने लगे बार बार। सेकेंड थिंग इज मे बी अ वेयरेबल अलार्म क्लॉक। ऐसे यू हैव टू टेल देम कि ये फीजिबल है। क्लियर? बताओ। यस सर, क्लियर। ठीक है, परफेक्ट। एक आखिरी प्रकार का केस और आ जाता है कभी कभी, विच इज योर प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट का केस। एट टाइम्स वो तुमसे कहते हैं कि प्रोडक्ट को इंप्रूव कर दो भाई। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्टिकुलर ऐप इज बोरिंग नाउ। ये क्वेश्चन आई थिंक अंकिता मैंने आपसे डिस्कस किया होगा ना, क्वेश्चन समथिंग न्यू दैट यू वुड वांट इन एन ऐप। हाँ, यस यस यस, मैंने पूछा था हाँ, आपसे। यस यस। So this is product improvement का typical case. कि sometimes your interviewer will go like कि यार, let's say my app YouTube is boring now. Make it cool again. Don't just start shouting random ideas. ठीक है? We user in general, मैं तो ऐसे सोचता हूँ कि अगर मान लो I have to improve something भाई, मेरी अगर मान लो साइकिल स्लो हो गई है, if my cycle is slow, how do I fix it कि वो तेज चले? पहली चीज। अब मुझे ये बताओ कि अगर साइकिल स्लो है मेरी, तो साइकिल स्लो होने के क्या हो सकते हैं रीजन? रीजंस फॉर स्लोइंग डाउन एग्जैक्टली। यूजर कौन है? सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा हु इज राइडिंग द साइकिल भाई, राइट? हु इज राइडिंग द साइकिल? और माई साइकिल इज बोरिंग। तो बोरिंग साइकिल के लिए आप क्या क्या निकाल सकते हो कि बोरिंग, किसी चीज को आपको किसी ने बोला कि बोरिंग है, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट का मतलब बोरिंग ही होता है। बोरिंग है, तो मेरी साइकिल बोरिंग होने का क्या कारण हो सकता है? पहले तो ये देखोगे यूजर कौन है जिसके लिए बोरिंग है, राइट? अब यूट्यूब फॉर अ ग्रैंड मा, लेट से आपकी दादी जी हैं, उनको साइकिल में क्या चाहिए? उनको चाहिए सॉफ्ट कुशन वाली सीट, करेक्ट? यही अगर कोई लेट से रेसर है, तो उसको साइकिल में चाहिए फास्ट टायर्स। और यही लेट से कोई आपका वो है भाई, कोई क्लाउन है, उसको चाहिए घंटी हॉन्क करने के लिए। यूजर पे डिपेंड करेगा कि वो बोरियत हटेगी कैसे, राइट? तब ये मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा यूजर है? ये मुझे बताएंगे इंटरव्यूअर जी कि अच्छा यूट्यूब इज बोरिंग, बट यूट्यूब इज बोरिंग आपके लिए बोरिंग है, मेरे लिए बोरिंग है, आपके बच्चे के लिए बोरिंग है, किसके लिए बोरिंग है? You pick one of the persona of the app. The first thing is list down all the personas, all the kind of people you can use in app, who can use that particular app. Number two, choose one persona out of all of them. Let's say अपनी साइकिल के लिए मैंने चूज करा क्या? मैंने एक राइडर चूज करा भाई। या अगर मेरे को कोई बोल रहा है व्हाट्सएप बोरिंग है,
तो मैंने व्हाट्सएप के लिए चूज करा पर्सोना एज अ स्टूडेंट। ठीक। सेकंड क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम आ गया फिर से, why is it boring, what hurts, what are the pain points। तो पेन पॉइंट आइडेंटिफाई करने के लिए पहली चीज क्या होती है, कोर पे जाना। कोर पे कैसे जाओगे, अब मैंने आपको बता दिया कि स्टूडेंट जो व्हाट्सएप यूज कर रहा है उसके लिए बोरिंग हो गया है। तो पहली चीज क्या पूछोगे खुद से कि स्टूडेंट व्हाट्सएप यूज क्यों करता है। करेक्ट। फंडामेंटल यूजेज ऑफ व्हाट्सएप पे जाओगे सबसे पहले, फॉर एनीथिंग, किसी भी चीज के लिए। अगर आपको बोला है कि एक रेसर को अपनी साइकिल बोरिंग लग रही है तो पहले तो आप यही पूछोगे ना खुद से कि एक रेसर साइकिल यूज ही क्यों करता है। Why is the student using WhatsApp? Correct. First thing. Why is the student using WhatsApp? ठीक है। नंबर 2, उन सारी चीजों में what can be the issues? Maybe उसके लिए बोरिंग इसलिए है because too many, let's say he loses important messages, so he doesn't find WhatsApp useful anymore क्योंकि उसको उसके important messages नहीं दिख पाते। Maybe he doesn't have a prioritization feature कि मेरे को ये मैसेज ऐसे दिखाओ, ये मैसेज वैसे दिखाओ। कुछ भी हो सकता है एक स्टूडेंट के लिए। मे बी ही इज अ पार्ट ऑफ अ लॉट ऑफ chaotic स्कूल ग्रुप्स, फालतू के ग्रुप्स में बहुत सारे बैठा होगा। मे बी कुछ भी हो सकता है ना फिर व्हाट्सएप। तो यू जस्ट आइडेंटिफाई द पेन पॉइंट। थर्ड चीज, पेन पॉइंट आइडेंटिफिकेशन हो गया, अब उस पेन पॉइंट को कर दो फिक्स। ठीक है। कि फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत सारे फनी ग्रुप्स का पार्ट हूँ, मतलब मेरे दोस्तों के बहुत सारे ग्रुप्स हैं। आई एम अ स्टूडेंट, राइट, एंड मेरे बहुत सारे ग्रुप्स हैं दोस्तों के जिन पे मीम्स आते रहते हैं बहुत सारे, और मैं डिस्ट्रैक्ट होता रहता हूँ व्हाट्सएप से। तो मेरी पेन पॉइंट क्योंकि ये है कि मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, तो मे बी आई कैन इंट्रोड्यूस अ होमवर्क मोड और अ फोकस मोड इन व्हाट्सएप। मैंने फोकस बटन डाला जैसे ही व्हाट्सएप पे, तो वो सारे के सारे फनी वाले जो ग्रुप्स हैं उनका ब्लॉक कर दे और सिर्फ मेरे पढ़ाई रिलेटेड ग्रुप्स के मैसेजेस मुझे दिखाए। और ग्रुप्स को क्लासिफाई मैं करूंगा कि ये फनी ग्रुप है कि ये पढ़ाई रिलेटेड ग्रुप है। दिस कैन बी वन ऑफ द फीचर्स दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड, राइट। समझ आया सबको कि 3 तरीके से कैसे ड्रिल डाउन करना है। पहले तो यूजर पर्सोना बनाओ उस ऐप का। आपसे यूट्यूब पूछे, यूट्यूब का यूजर पर्सोना बनाओ। कौन कौन एक यूट्यूब को यूज करता है भाई? बच्चा यूज करता है, स्टूडेंट यूज करता है, वर्किंग प्रोफेशनल यूज करता है, मिडिल एज लोग अपने टाइम पास के लिए यूज करते हैं। तो पहले तो आप क्लैरिफाई करोगे ना किसके लिए बोरिंग है। फिर उन्होंने बोला कि चलो मेरे लिए, आप एज अ स्टूडेंट उसके लिए यूट्यूब जो है वो इस समय सही नहीं है। तो फिर आप पूछोगे कि व्हाई डज अ स्टूडेंट यूज यूट्यूब इन ऑर्डर टू लर्न। उसकी फंडामेंटल नीड तो टू लर्न ही है, राइट। फिर आप उसका पेन पॉइंट आइडेंटिफाई करोगे कि मे बी ही हैज सब्सक्राइब टू अ लॉट ऑफ फनी कंटेंट वाले चैनल्स। पर्सोना चूज कर लिया कौन सा एक करना है, एक पर्सोना। अब उस एक पर्सोना के पेन पॉइंट्स आइडेंटिफाई करोगे कि व्हाई डज अ स्टूडेंट एक्चुअली नीड टू यूज यूट्यूब, क्योंकि उसको सीखना है। व्हाट कैन बी इज पोटेंशियल पेन पॉइंट्स, कि उसने बहुत सारे फनी चैनल्स को सब्सक्राइब कर रखा है, बहुत सारे ऐसे ये जो भी मजेदार चैनल्स होते हैं भाई, कार्टून चैनल, स्पोर्ट्स चैनल, ये चैनल को, और उसको बहुत सारे नोटिफिकेशंस आते रहते हैं यूट्यूब से। सो ही इज नॉट एबल टू फोकस। ठीक। ही इज अ पार्ट ऑफ अ लॉट ऑफ चैनल्स भाई यूट्यूब पे। चलो ठीक है, दिस इज द मेन प्रॉब्लम। अब थर्ड लास्ट चीज, इसका सोल्यूशन बना दो। सॉल्यूशन इज कि यूट्यूब पे भी एक फोकस मोड डाल देता हूँ। एग्जाम्पल दे रहा हूँ यूट्यूब के लिए। समझ आया सबको? व्हेनेवर यू आर आस्क्ड टू इंप्रूव अ प्रोडक्ट, तो आप डायरेक्टली इंप्रूव करने नहीं पहुंच जाते हो रैंडम आइडियाज देके। चूज अ पर्सोना, आइडेंटिफाई द पेन पॉइंट, गिव द सोल्यूशन।
And if the question is asked that you have to, let's say, suggest a change that you would want in an app that you use in your daily life, तो उसमें मुझे बताओ persona कौन है? You are the persona yourself. So now you have to figure out first कि why do you use that app? And number 2, आपको जैसे ही पता चला you are the persona, why do you use the app? Now, what is the issue that is caused by that app to you? या फिर something that you experience? पता चले, solution दे दो. क्लियर है? सबको क्लियर है बिल्कुल कि प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट के केस इन जनरल कैसे सोचे जाते हैं? बताओ. किसी को कोई डाउट है? किसी को नहीं समझ आया है? कैसे करना है? कैसे सोचते हैं? क्या है फंडामेंटल्स? कैसे अपना दिमाग स्ट्रक्चर करना है? सबको क्लियर है एकदम ये सारे प्रकार के केसेस? क्लियर है तो थम्स अप दे दो, क्लियर नहीं है तो थम्स डाउन दे दो भाई. दो का तो आ गया भाई थम्स अप. क्लियर? कर लोगे अब अपने इंटरव्यूज में आंसर? बता दोगे उन्हें? कोई सैंपल क्वेश्चंस या केस स्टडीज हैं, मतलब नोट कर लेते हैं ताकि उसके बारे में सोच लें. केस बुक भेज दूंगा भाई कोई. ठीक है, थैंक यू. केस बुक देख लेना. पर इन जनरल समझ आ गया ना सबको अब यस. कैसे सोचा जाता है? हम्म. सबके सब अब जाके इंटरव्यूज में ब्लैंक तो नहीं बैठोगे ना? एक दिमाग में एक स्ट्रक्चर तो छप गया ना कैसे सोचना है. हम्म. और कुछ नहीं समझ आए तो ये सब चीजें बड़बड़ा तो आओगे इंटरव्यूअर के सामने एटलीस्ट कि देखो दिस इज हाउ आई एम ट्राइंग टू स्ट्रक्चर माय प्रॉब्लम. ये तो बताया होगा उसे कम से कम. ये तो उसको दिखाया होगा कि कम से कम यू आर समवन हु नोज हाउ टू स्ट्रक्चर थिंग्स. क्लियर है एकदम बढ़िया मस्त. क्लियर है तो रैप अप करें ये सेशन. हाँ मैं यूट्यूब पे तो अपलोड कर ही दूंगा भाई. यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा मैं कल 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 कर दूंगा. ठीक. चलो गाइस, इफ इट इज क्लियर लेट्स रैप अप द सेशन. आई होप मैंने बहुत गंदा नहीं समझाया है ये, या तुम लोगों का समय बर्बाद नहीं हुआ है. आई होप इट वाज फ्रूटफुल. एंड कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार की, फील फ्री टू डीएम एनी टाइम. ठीक. चलो, गुड नाइट. लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग एज वेल.